एवरीवन, माय नेम इज साक्षी एंड आज के सेशन में हम एलिट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनालाइज करेंगे. सो आई वुड बी टेकिंग द एनालिसिस ऑफ लीगल रीजनिंग सेक्शन. नाउ बिफोर वी मूव अहेड टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, there are few things that I would like to tell you. One, the entire paper, including the legal reasoning, was pretty easy, pretty easy. मतलब जैसा एलिट का हमेशा से एक पूरा सेटअप रहा है, especially for the last 2 3 years, where they would give you a lot of lengthy questions, lot of difficult questions, multiple principles. इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं था. There were very few questions which were lengthy. Majority of them were the simple ones. So one thing is sure that it was completely an easy set of 35 questions. Now, easy obviously makes it difficult for people to score because everybody is able to score that way. But yeah, the general paper was easy, one thing. Secondly, जैसे मैंने अभी कहा, lengthy questions were very rare. Hardly 2 or 3 questions which were lengthy. So students who would have prepared a lot of lengthy questions would have felt real bad, I'm sure. The questions which were there for legal reasoning were easy, simple, and so much related to the previous year questions. मतलब साफ साफ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया है so they can tell कि oh I have seen this question before, oh I have seen that question before. So there are a lot of questions जो in general previous year questions का part थे. Also anybody who has solved the legal reasoning module by the legal edge, जो legal edge के RSMs हैं, उसमें अगर किसी ने भी ध्यान से सॉल्व किया है तो उसको मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जो उन्होंने पहले कभी देख रखे हैं या पहले कभी सॉल्व कर रखे हैं. सो लीगल रीजनिंग वाज मोर ऑन अ older CLAT pattern, older elite pattern, and not at all lengthy, not at all difficult. Coming to the current legal knowledge. Now, since time inception, एलिट हमेशा से बहुत सारे करंट लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस देता आया है. ठीक है. इनफैक्ट while I was preparing the last few mocks and I actually saw कि भाई एलिट 2019, एलिट 2020 and also 2018, they have asked at least 15 to 16 current legal knowledge questions in each of the exams. एंड डेफिनेटली इट वॉज अ पॉइंट ऑफ फोकस. इट वॉज समथिंग जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था. बट टू अटर एवरीबडीज अटर सरप्राइज, करंट लीगल नॉलेज के बहुत कम क्वेश्चंस थे. एंड स्टैटिक क्वेश्चंस लाइक द क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी जो इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं एलिट में या बहुत ही रेयर सिनेरियो में कभी दिखते हैं, देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी और फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के स्टैटिक क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस थे. So yeah, it was easy, but also a kind of a surprising paper. Moving on to the first question here that we have. So this one question is a bit difficult one. As I told you, like very rare couple of questions were difficult or like not difficult exactly, lengthy. So this is one of those questions जो lengthy वाली category में आएगा. But again, lengthy did not mean कि वो difficult होंगे. They were pretty easy. So going to the first principle here, इट इज टॉकिंग अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की. जस्ट अ सेकेंड. या एंड सिंपल है कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन कब अराइज होता है, जब कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो या इस तरह का कुछ इंड्यूस किया जाए रिजल्टिंग इन अनदर पार्टी टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. तो मिस रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है. नाउ गोइंग थ्रू द facts of this situation, there is a girl called Kritika and she is planning to buy a guitar for her mother. जब वो गिटार खरीदने जाती है तो वो किसी हिमांशु नाम के पर्सन के शॉप पर जाती है एंड हिमांशु शोज क्रिटिका ऑल, सॉरी नॉट गिटार, पियानो, माय बैड हियर. या सो शी गोज टू बाय पियानो एंड जब वो पियानो देखने जाती है तो वो उसको बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के पियानो दिखाता है. कृतिका हैड नो प्रायर नॉलेज ऑफ पियानोस एंड हेंस रिलाइड ऑन हिमांशु's ओपिनियन. हिमांशु के ओपिनियन पे वो रिलाई करती है. नाउ शी सॉ अ विंटेज पियानो और जब वो हिमांशु को पूछती है तो वो यही बताता है कि दे डोंट मेक सच काइंड ऑफ पियानो एनी मोर एंड इट गॉट अ फाइन टोन एंड इट्स रियली चीप फॉर 50,000. तो उसको लगता है कि यार ये तो बढ़िया है, विंटेज भी है, लुक्स गुड, और वो खरीद लेती है. इट्स ओनली लेटर व्हेन हर मदर प्लेस द पियानो शी रियलाइजेस दैट इट्स नॉट गुड. उसके टोन सही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है दैट द क्वालिटी वाज नॉट प्रॉपर एंड द टोन वाज आल्सो नॉट प्रॉपर. Now the mother and the daughter obviously are planning to, get it refunded or get it exchanged from Himanshu, which Himanshu refuses. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
What would be the strongest argument that Himanshu could make? ऐसा वो कौन सा argument देगा? So understand, they are not asking whether Himanshu is liable for misrepresentation or not. They're just saying that if there are allegations on Himanshu, Himanshu return में क्या counter argument देगा? अब दे हैव डन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, उन्होंने सारे ऑप्शंस नॉट वाले दिए हैं कि हिमांशु किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेगा। ऑब्वियसली इजी भी है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक बेटर रीजनिंग चूज करनी है। ए ऑप्शन ए सेज हिमांशु इज नॉट लाइबल टू डू ईदर because it is only Kritika's mother's subjective opinion. Okay, now mother's subjective opinion is not very relevant for us, so I'm going to remove this option. Next is Himanshu is not liable to do either because there is nothing to suggest that Kritika's decision was based purely on Himanshu's statement. ये मैं कंसिडर कर सकती हूँ। Himanshu is not liable to do either. The piano, since Kritika should have done her due diligence. अब ये वो ज्ञान देने वाली बात कर रहा है कि भाई ये तो कृतिका की जिम्मेदारी बनती थी, खुद चेक कर लेना। तो obviously we don't choose options like these. The next is Himanshu is not liable to do it either because he only gave Kritika his opinion and did not make any false statement. Now B और D मुझे दोनों ही बहुत क्लोज लग रहे हैं। आइडली जो आंसर एलिट ने भी दिया है एंड द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। वाई डी आई टेल यू। बी बोल रहा है इज नॉट लाइबल ईदर बिकॉज देर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट कृतिका's डिसीजन वाज बेस्ड प्योरली ऑन हिमांशु स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करें कि भाई कृतिका का स्टेटमेंट हिमांशु की बातों पे बेस्ड नहीं था। अगर हम ऑप्शन डी चूज करते हैं बी को छोड़कर, तो यहाँ पे वो दो चीजें बोल रहा है कि पहली बात तो कृतिका को उसने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था एंड द सेकेंड वाज देयर वाज did not make any false statement to the fact। और क्या ये false statement हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से relevant है? Yes. So if you compare B and D, D becomes a better answer. Moving on to the next question. I think, yeah, would be better. ठीक है. So this is a very simple question. No confession made to a police officer shall be proved against the person accused of any offense. आपने पुलिस ऑफिसर को कुछ कन्फेस किया है तो वो कंसिडर नहीं होगा। रितु वॉज अक्यूज ऑफ मर्डरिंग आकाश। उसने कन्फेस भी कर लिया टू द इंस्पेक्टर दैट शी हैड इन फैक्ट मर्डर्ड आकाश। बाद में पता चलता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कि और कोई दूसरे एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। नाउ द पुलिस कैरिड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड अदर एविडेंसेस। Can the confession statement signed by Ritu proved in the court? The point is कि whatever confession she gave was in front of the inspector। और क्या पुलिस ऑफिसर को दिया वो कन्फेशन माना जाएगा क्या? नहीं। सो नो वाले ऑप्शन कहाँ है? ये तो बी तो यस की बात कर रहा है, ये हटा दिया। सी भी यस की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स डी कैन नॉट बी द आंसर। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए। सो प्रिटी इजी टू चूज, नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ प्रिंसिपल जो शायद थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज लगा होगा किसी को। No tenant is tenant of immovable property shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy the title to such immovable property। सीधी सी बात है कि भाई अगर तुम कहीं पे किराएदार हो और जब तुम ऑलरेडी उस घर में या उस प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एज अ किराएदार की तरह रह रहे हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है लैंडलॉर्ड को बोलने का कि भाई आप अब इसके मालिक नहीं हो। जब तुमने किराए पे लिया था जो इंसान लैंडलॉर्ड था, क्या वही लैंडलॉर्ड बन के कंटिन्यू करेगा आगे भी? हाँ। नाउ ऐश्वर्या रेंटेड अ फ्लैट फ्रॉम निधि। ऐश्वर्या ने ये फ्लैट ले रखा है, ठीक है, और वो निधि को रेंट देती थी। बीच में आशीष आ जाता है। आशीष शोड ऐश्वर्या द ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स विच शोड हिम टू बी द रियल ओनर। तो यहाँ पे पता चला कि जो निधि ने प्रॉपर्टी ऐश्वर्या को दे रखी है वो एक्चुअली निधि की नहीं है, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू आशीष। तो आशीष उसको ओरिजिनल पेपर देता है। इन दिस फियास्को ऐश्वर्या स्टार्ट्स पेइंग रेंट टू आशीष। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐश्वर्या ने निधि को रेंट देना बंद कर दिया एंड शी स्टार्टेड पेइंग टू आशीष। निधि ने ऑफ कोर्स केस फाइल किया और जब केस फाइल किया तो वो यहीं पे बोल रहे कि भाई मैं तो उसको दे रही हूँ जो रियल ओनर है, तुम्हें डिसाइड करना है कि होम इज शी सपोज टू पे। द आंसर वुड बी कि रियल ओनर ऐश्वर्या के लिए हमेशा निधि रहेगी, क्योंकि एट द टाइम जब टेनेंसी बिगिन हुआ था क्या उस टाइम पे निधि थी? यस। सो इफ शी इज पेइंग रेंट टू आशीष शी कैन नॉट डू सो। सो कमिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐश्वर्या शुड पे रेंट टू निधि since she took the property on rent from Nidhi and now she cannot deny Nidhi's title over the property. Okay. Aishwarya has checked the property papers herself, तो ये तो फिर एक्स्ट्रा चीजें हो गई। Aishwarya should deposit the money in court
कुछ मेंशन नहीं है इस रेस्पेक्ट में. अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी शुड नेवर बी गिवन अंटिल रेंट, ये भी कहीं पे दिया हुआ नहीं है. सो अगेन इजी टू चूज ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4. A person who suffers an injury as a result of risk which he has consented to cannot complain of the consent damage. सीधी सीधी बात है. वीएनएफआई की बात करें कि आपको कंसेंट था और आपने कंसेंट होते हुए किसी चीज के लिए मतलब कोई रिस्क लिया है, आपने उसके लिए कंसेंट दिया और फिर कोई डैमेज हो जाए तो सामने वाला लायबल नहीं है. अब Q urged his older brother Z to allow him to ride Z's motorbike. तो वो बोलता है कि भाई मुझे प्लीज अपनी गाड़ी चलाने दे. जब वो गाड़ी चलाने जाता है तो पता चला है कि मोटर बाइक हैड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मैकेनिज्म विच क्यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. क्यू को नहीं पता था, जिस चक्कर में क्यू का एक्सीडेंट हो जाता है एंड क्यू गॉट इंजर्ड. क्यू मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इज सुइंग जेड फॉर इंजरीज. क्या जेड इसके लिए लाइबल होगा? द आंसर वुड बी यस, जेड लाइबल होगा. क्योंकि अगर जेड कंटेंट कर रहा है कि क्यू ने कंसेंट दे रखा था रिस्क का, द पॉइंट इज क्यू ने रिस्क का कंसेंट दे रखा था रिलेटेड टू मोटर बाइक. ठीक है, जो नॉर्मल बाइक के रिस्पेक्ट में था वो कंसेंट दे रखा था. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मैकेनिज्म, कुछ भी जो उसमें एडिशनल चीज थी उसके बारे में क्यू को कोई नॉलेज नहीं था. एंड इफ देयर वाज नो नॉलेज तो क्या वहां पे कोई कंसेंट दिया था क्या? नहीं, तो उसको हम कंसेंट में कंसिडर नहीं करेंगे. तो ये बोल रहा है कि क्यू डिड नॉट कंसेंट, ये एक ऑप्शन हो सकता है. वो बोल रहा है क्यू डिड नॉट कंसेंट टू द रिस्क बिकॉज ही डिड नॉट हैव कैपेसिटी टू कंसेंट. बट ये क्यों की कैपेसिटी की बात कर रहा है, आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दिस. क्यू डिड नॉट कंसेंट टू द रिस्क बिकॉज ही हिज कंसेंट वाज नॉट वॉलंटरी. वॉलंटरी इनवॉलंटरी यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है. Q consented, no, Q did not consent. Q did not consent to the risk because he did not have knowledge to the extent and nature of the risk. क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, ये दिया है, नॉलेज ऑफ द एक्सटेंट एज वेल एज नेचर ऑफ द रिस्क. तो ये साफ साफ हमारे प्रिंसिपल से डिराइव हो रहा है आंसर. द आंसर वुड बी डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. 5 इज टॉकिंग अबाउट द वाइकेरियस लाइबिलिटी. सिंपल की भाई मास्टर कब लाइबल होगा. To determine whether an act falls within the course of employment, one must look at the function work that the employee was tasked with and then evaluate if there was a close connection between. Simple vicarious liability का प्रिंसिपल की भाई देख लेना पहले कि कब हम कहेंगे कि वहां पे मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी एक्सेस करती है या नहीं करती है. तो उसके लिए देख लेना कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था. नाउ जी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एम्प्लॉयड है और इस क्वेश्चन में दिया है कि वन नाइट आफ्टर जीज शिफ्ट, जी की शिफ्ट खत्म हो चुकी है और फिर उसकी किसी से बहसबाजी हो जाती है जहां पे वो घर में जाके ही वेंट होम, गॉट इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है और फिर वो अपने घर को आग लगा देता है. क्या जी की फैमिली रेस्टोरेंट के को लाइबल कर सकती है? क्या नहीं. पहली चीज, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका खत्म हो गया है और दूसरा घर में आग लगाना या घर से रिलेटेड कोई भी काम क्या जी को दिया गया था एज अ टास्क? नहीं, ये जी के पास नहीं था. तो क्या रेस्टोरेंट लाइबल होगा? नो, द रेस्टोरेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल. सो ए इज मेकिंग रेस्टोरेंट लाइबल, ये हटा दिया. लाइबल ये हटा दिया. नॉट लाइबल वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी. हम इन जनरल डी कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई भी फीजिबल ऑप्शन ना हो. बट बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड सी जो साफ साफ हमारे प्रिंसिपल के साथ जा रहा है, तो हम डी को ना चूज करके क्या चूज कर लेंगे? ऑप्शन सी. नाउ coming to the sixth question which is in connection to the above question here. यहाँ पे वो साफ साफ बोले कि भाई जी एक सिक्योरिटी गार्ड है रेस्टोरेंट में और उसका टास्क दिया था मेंटेनिंग सिक्योरिटी और ये सारा काम. वन नाइट अ ग्रुप ऑफ अनरूली गेस्ट, उनके साथ कोई वर्बल ऑल्टरकेशन हो जाता है, जी की बहसबाजी हो जाती है और क्योंकि जी शॉर्ट टेम्पर्ड है वो इरिटेट हो जाता है और वो एक गेस्ट को मार देता है. क्या रेस्टोरेंट लाइबल होगा? हाँ, क्योंकि जब उसने गेस्ट को मारा तब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था और अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था तो रेस्टोरेंट विल बी हेल्ड लाइबल. Now, this says not liable. This says not liable. हाँ, A says the restaurant is liable for G's action because his acts were within the course of employment. और क्या ये perfect answer दे रहा है? Yes, so answer is A. Coming to the seventh question, just a second. Yeah, seventh question says whoever takes any movable property out of possession of any person without a person's consent moves that property. Now, this is one question which I have discussed so many times in the class, especially students who have taken a proper
कोर्स विद लीगल एज वुड अंडरस्टैंड कि हम डिस्कस करते थे कि मूव और टेक अवे, मूव एंड टेक अवे. सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे उन्होंने सिर्फ मूव की बात बात की है और उतने में मूव में ही वो कंसिडर कर ले रहे हैं कि भाई थेफ्ट हो गया है. तो यहाँ पे कोई इंसान आता है जो कोई पर्टिकुलर गोल्ड ऑर्नामेंट होता है जो उसी घर में एक सीलिंग के अंदर हाइड कर देता है, ये सोच के कि बाद में आऊंगा और उसको उठा के ले जा लूंगा. नाउ द पॉइंट इज कि विल दिस बी कंसिडर्ड एज थेफ्ट? यस, क्योंकि गोल्ड ऑर्नामेंट क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ. क्या मैलाफिड इंटेंशन था? यस. डिड ही मूव फ्रॉम द पोजीशन? यस. आउट ऑफ समवन एल्सेस पोजीशन, क्या किसी और के पोजीशन में वो ये ऐसे काम कर रहा था? यस. और अगर चारों कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या ये थेफ्ट के अंदर आ जाएगा? हाँ. So this says no, and answer would be B. Trust me, like this is one of the easiest paper of elite ever, at least in the last 5 years. Again, the same definition for theft. Theft की वही definition दे रखी है. Next is कि आर के पास कोई एंटीक वॉच है, ठीक है, और जो उसने जूलर को दी थी. अब जूलर फॉर सम रीजन देने से मना कर देता है वापस. मतलब लेके बैठ गया, उसको बोला था कि भाई इसको रिपेयर कर देना या इसका वैल्यूएशन कर देना, वो तो लेके ही बैठ गया. तो आर एक दिन जबरदस्ती उसके घर जाता है और अपनी वॉच, या जाती है, अपनी वॉच लेकर जबरदस्ती वापस आ जाती है. द पॉइंट इज, हैज आर कमिटेड थेफ्ट? नो. द रीजन भी कि वो इंटेंशनली नहीं कर रही थी. देयर वाज अ लैक ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन हियर. जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो यहाँ पे लैक कर रहा था. शी जस्ट वांटेड हर वॉच बैक, जो इंसान जबरदस्ती अपनी मर्जी से लेकर बैठ गया था बिना बात के. तो क्या वो यहाँ पे थेफ्ट कर रही है? नो, शी इज नॉट कमिटिंग थेफ्ट. नाउ ऑप्शंस पे आओ. ये कह रहा है यस थेफ्ट है, ये कह रहा है यस थेफ्ट है, ये कह रहा है, तो क्या ये तीनों गलत हो गए? हाँ, द आंसर वुड बी ऑप्शन डी. Question number 9. So this is generally talking about criminal trespass. This is one of those questions जो कुछ students like I met who did it wrong क्योंकि उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा. तो सीन ये है कि एक एच है, एच एक ए नाम एल नाम के पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करता है, और एल नाम की प्रॉपर्टी में एंटर करके यहाँ पे उसने एंटर किया है और यहाँ से खड़े होके सी को अब्यूज कर रहा है. द पॉइंट इज कि वो सी को अब्यूज तो कर रहा है, सी को इंटिमिडेट तो कर रहा है, बट डिड ही एंटर सीज प्रॉपर्टी? नो, ही डिड नॉट. और अगर वो सी की प्रॉपर्टी में एंटर ही नहीं किया है तो क्या वो ट्रेसपास होगा क्या? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ट्रेसपास. सो इट सेज एच कमिटेड criminal trespass. No. L committed criminal trespass. No. H did not commit criminal trespass. Yes. So answer would be C, कि भाई H ने criminal trespass नहीं किया है. Question number 10. Whoever gives gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or rewarding any person of having exercised such right commits to the offense of bribery. ये बता रहे हैं कि भाई घूस लेना क्या होता है. आप कभी भी किसी भी मैनर में ऐसा कुछ काम करो जहां पे आप कुछ ऑब्जेक्ट दे रहे हो या ऐसा कुछ दे रहे हो जिससे इंसान अपने इलेक्टोरल राइट्स को उस रिवॉर्ड के थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये ब्राइबरी है. अब अगर सुपरफिशियली ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कोई जरूरतमंद इंसान था, इस कैंडिडेट ने तो उसको सिर्फ हेल्प करी है. बट ये हेल्प कब कर रहा था? दिस वाज डन ड्यूरिंग हिज विजिट एज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन. तो जब वो इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए गया था, वो तब वो किसी की हेल्प कर रहा था. और अगर वो तब हेल्प कर रहा है और उसके बाद पार्टी का सिंबल दिखाते हुए जा रहा है कि अपकमिंग इलेक्शन में ये पार्टी है, क्या वो यहाँ पे लिटरली ब्राइब कर रहा है? हाँ. आप गए थे प्रचार करने, आप गए थे वोट मांगने, आप किसी की हेल्प कराए और हेल्प करने के बाद आप उस इंसान को अपने पार्टी की तरफ डायरेक्ट करके आ गए, तो वो जो हेल्प आपने की है क्या वो एक तरीके की ब्राइबरी हो गई है? यस. सो यहाँ पे अगर आंसर यस है तो ये वाले ऑप्शंस चले गए. द आंसर वुड बी ए. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. सीधा सीधा प्रिंसिपल दिया है, बहुत सिंपल, फॉर कल्पेबल होमिसाइड. कि भाई कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? ऐसा कोई एक्ट जिससे लाइकली टू कॉज डेथ वाला सिचुएशन हो. नाउ पी वाज हंटिंग इन अ स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया व्हिच ही न्यू टू बी एन इनहैबिटेड विलेज एंड फ्रीक्वेंटेड बाय अदर हंटर्स इन लार्ज नंबर. वो है तो फॉरेस्टेड एरिया में, बट वहां पे पता है कि विलेजर्स और दूसरे ह्यूमंस आते हैं. हिज फ्रेंड डिड नॉट नो दैट अदर पर्संस आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द एरिया. पी वेजर्ड with his friend that he could hunt without using his visual senses. P was put on blindfold. P ने वहां पे कुछ रसलिंग सुन के गोलियां चलाई, 3 लोग मर गए. क्या P कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल है? Yes, he would be held liable. अब अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा सा पता है क्या कर सकता है? दिस एलिमेंट ऑफ हिज फ्रेंड.
ठीक है, एलिमेंट जो उनने ऐड कर दिया है कि जो पी का दोस्त है, पी के दोस्त को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन था कि लोग घूम रहे होंगे। द पॉइंट इज कि दोस्त ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे। पी ने खुद को ब्लाइंड फोल्ड करवाया, पी ने खुद गोली चलाई, और पी को तो पहले से ही पता था कि यहाँ लोग घूमते हैं इंसान। और अगर सब कुछ नॉलेज है तो क्या पी लाइबल होगा? यस। क्या यहाँ पे नॉलेज वाली चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है? हाँ, इन केस इफ यू हैव डाउट, आई हैव पॉइंटेड दिस वन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ऑल्सो अनदर लेंदी क्वेश्चन। तो मतलब 12 क्वेश्चन में सिर्फ पहला वाला लेंदी था, फिर 12th क्वेश्चन लेंदी है। और यहाँ पे वो नॉर्मल फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि फ्रॉड कब होता है। सो देर इज सम कंपनी कॉल्ड विंड, ठीक है, विंड ऑन लिमिटेड ऐसी कोई कंपनी है और वो स्टैब्लिश्ड है। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड जेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म एंड टू बी अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिल्डिंग इंस्टॉलेशन हाईवेज अक्रॉस द इंडिया। जेड ने अपना पोर्टफोलियो एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे क्या किया? The representatives of Windon and Z Infrastructure carried out extensive negotiation and advised by legal firms and commercial advisory firms on both sides with the later to establish a wind park in Odisha. तो डिसाइड कर लिया कि विंड पार्क बनाया जाएगा उड़ीसा में, और जो विंड पार्क बनाया जाएगा उसमें जो जनरेट होगी टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी, वो 25 लाख किलोवाट होगी। ये ऐसा एस्टिमेट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाउएवर दे प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम खुद सोचो कि तुम कोई विंड फार्म या कुछ भी ऐसा डेवलप कर रहे हो, तुम बता सकते हो कि उस टाइम पे जो कंडीशन होंगी, वेदर कंडीशंस, उसके हिसाब से हो पाएगा। तो इन्होंने एस्टिमेट दे दिया कि यार 54 के अराउंड हो सकता है। जब ये पूरा बना तब पता चला कि वहां पे जो स्पीड आ रही है या जो भी जनरेशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द विंड, वो सिर्फ 35 लाख ही है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है जनरेशन। नाउ दे वर फ्रस्ट्रेटेड, और उन्होंने कोई लाल एंड कंपनी, एक लॉ फॉर्म में उसको रीच आउट किया है कि भाई हमें हेल्प करो, हमारे साथ धोखा हो गया है। एज अ लॉयर ऑफ लाल एंड कंपनी तुम्हें बताने की क्या सही है क्या गलत है। नाउ यू नो कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये एस्टिमेट था। एस्टिमेट हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, एस्टिमेट सिर्फ पॉइंट +2 +4 या -4 माइनस +4 ऐसा होगा क्या? ये जरूरी है? नहीं, एस्टिमेट क्या बड़े लेवल पे भी ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, एंड इफ एट ऑल दिस वाज जस्ट एन एस्टिमेट, अगर ये सिर्फ एस्टिमेट था, तो क्या वो विंड ऑन क्लियरली लाइबल होगा क्या? नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है, वर आस्क्ड इफ विंडॉन हैड कमिटेड अ फ्रॉड। नो, विंडॉन डिड नॉट कमिट अ फ्रॉड, क्योंकि एस्टिमेट को हम फ्रॉड के अंदर कंसिडर नहीं करते। सो ये तो यस बोल रहा है, ये यस बोल रहा है, ये, एंड दिस इज नो। आई एम श्योर बाय द 12th क्वेश्चन यू वुड हैव रियलाइज दैट ऑप्शंस आर वेरी इजी। मतलब इस तरह से ऑप्शन है कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपके पास एक या दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो जो दूसरा भी है वो इतना ही सिंपल है, इतना ही इजी है कि आप बता सकते हो कि भाई दिस इज ओनली गोइंग टू बी एन आंसर। तो वो जो ऑप्शन रिलेटेड कंफ्यूजन होता था एंड स्टूडेंट्स वुड एंड अप मार्किंग रॉन्ग आंसर्स बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज होते थे, क्या वो इस बार हुआ है क्या? वैसा चांस इस बार नहीं था। नाउ द नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज बेलमेंट, कि भाई बेलर क्या होता है, बेली कौन होता है, कौन किसको गुड्स देता है। और इस प्रिंसिपल में उन्होंने मेंशन किया कि जिसे गुड्स दिए जाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है bound to take as much care of the goods bailed to him or her as a person of ordinary prudence would and under similar circumstances। मतलब तुम उसको वैसे ही रखोगे जैसा इन जनरल तुम अपना सामान रखते। अब अपर्णा जब जा रही थी तो वो गगन को कुछ देकर चली गई अपनी प्रॉपर्टी। गगन के घर से वो चोरी हो जाता है, ठीक है। So one night certain thieves entered the warehouse and stole goods of both Gagan and Aparna. It was discovered that enough, even though Gagan had locked the main door, he carelessly left the window open. वो खुद ही विंडो ओपन छोड़ के चला गया। और अगर यहाँ पे वो केयरलेसली एक्ट कर रहा है तो क्या फिर गगन यहाँ पर लाइबल हो जाएगा? यस, द गगन वुड बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि उसने अपर्णा के गुड्स का ध्यान नहीं रखा। तो ये बोल रहा है नॉट लाइबल, ये बोल रहा है नॉट लाइबल, और नन ऑफ द अबव, सो आंसर वुड बी ए। आई एम जस्ट टेकिंग अ 30 सेकेंड ब्रेक। ठीक है, कमिंग टू 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कहता है कि भाई देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेज ऑफ क्राइम होते हैं जिसमें से शुरू के 2 पनिशेबल नहीं होते
और जो लास्ट के दो हैं वही पनिशेबल होते हैं, मतलब अटेम्प्ट और अकम्प्लिश या कमीशन ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल है, इंटेंशन और प्रिपरेशन वो पनिशेबल नहीं है. In order to be designated as an attempt to commit an offense, the act or series of the act must be done sufficiently proximate to the accomplishment of the intended offense. जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई अगर उसमें किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता तो क्या वो क्राइम हो जाता, क्या वो अकम्प्लिश हो जाता. हाँ. अब सचिन ने मैच बॉक्स ले लिया है और वो कहीं आग लगाने जाता है. जैसे ही वो आग लगा रहा था उसको लगा कि कोई इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और इसलिए वो वहां से डर के भाग गया ये सोच के कि यार पता चल जाएगा कि ये तो मैं ही हूं जिसने आग लगाई थी. सवाल ये है कि क्या सचिन यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा. यस, बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट इन अ पोजिशन टू सेट द प्रॉपर्टी ऑन फायर. और अगर वो उस पोजिशन में था तो क्या वो अटेम्प्ट वाले स्टेज में आ चुका था. हाँ. तो ये तो नॉट गिल्टी बोल रहा है. Not guilty. Sachin is guilty for having committed attempt to arson, as lighting the match was the penultimate act before the commission of the intended offense. Okay. Is guilty of committed an attempt of arson since there is sufficient proximity between the act of lighting the match and intended offense of the arson. क्या ये यहाँ पे important है? The proximity? Yes, sufficient proximity. So answer would be option D. 15th. So now 15th is talking about double jeopardy कि भाई एक बार इंसान अगर प्रोसिक्यूट और पनिश हो गया है तो उसको दोबारा से नहीं किया जाएगा, बिकॉज पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ओनली वंस फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है. यहाँ पे अरुण जो है उसने किसी तरह की गड़बड़ी की, पेपर लीक करवा दिया, पैसे ले लिए. अब अरुण was accused of having leaked the entrance examination to Kamlesh for a hefty bribe. Disciplinary proceedings were initiated and he was found guilty. As a penalty, he was removed from the employment. तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने तुम पे एक्शन लिया है, बट यहाँ पे जिस प्रोसिक्यूशन की हम बात करते हैं क्या ये प्रोसिक्यूशन कोर्ट में होना चाहिए. हाँ. तो अभी जब डिपार्टमेंट ने तुमको नौकरी से निकाला है तो वहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है. ठीक है. फिर जब उसके ऊपर एक्चुअल में केस फाइल किया गया, यहाँ दिया हुआ है, अ क्रिमिनल केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. जब क्रिमिनल केस किया गया तो क्या ये पहली बार किया गया है. हाँ. और अगर ये पहली बार किया गया है तो फिर यहाँ पे डबल जेपर्डी अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा. So A says the principle of double jeopardy will not apply as the disciplinary proceedings by IIST cannot be termed as prosecution since they were made departmental proceedings and not criminal prosecution. Okay. The principle of double jeopardy will not apply as Arun is accused of serious offences. कुछ कहीं serious का mention नहीं है तो ये हटा दिया मैंने. The answer would be A. आंसर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी गलत है, और अगर सी गलत है तो फिर सिर्फ आंसर हमारे पास बचता है, दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन 16 अगेन प्रिटी सिंपल प्रिंसिपल रिगार्डिंग न्यूसेंस. अब यहाँ पे कोई जांदियापुर नाम का जगह है, ठीक है, जहाँ पे एक बहुत पुराना क्रिकेट ग्राउंड है. इस क्रिकेट ग्राउंड के आसपास मिस्टर एंड मिसेस एक्सवाइजी अपना घर ले लेते हैं, वहां पे रहने लगते हैं. अब बात है वो क्रिकेट ग्राउंड से बॉल आ जाती है, इनकी विंडोज वगैरह टूट रही है. इन्होंने बहुत बार बोला उनको कि भाई तुम नेट वगैरह लगा लो, बट वो सुन नहीं रहे हैं. सो फाइनली दे डिसाइडेड टू फाइल अ केस ऑफ न्यूसेंस. ये क्वेश्चन अगर मैं जनरली पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा कि यार ये तो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है ना, जहां पे न्यूसेंस हो रहा था इन्होंने खुद जाके वहां पे रहना शुरू किया है. बट अगर तुम ये वाला लाइन पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी. कैसे? इट इज नो डिफेंस टू क्लेम द न्यूसेंस दैट the plaintiff knew the interference would be caused. अगर plaintiff को पता है कि वहां पे interference cause होगा और उसके बाद भी वो आके वहां पे रहने लग जाए, क्या तब भी वो nuisance claim कर सकता है? Yes, वो claim कर सकता है. So Mr. and Mrs. XYZ will be unsuccessful, तो ये हटा दो. Will be unsuccessful, ये भी हटा दो, बचे option 2. So would be successful because use of the cricket ground is causing unreasonable interference with their enjoyment of their home. For the cricket club cannot take Mr. Mr. and Mrs. XYZ brought trouble on their head. ठीक है? Because they are old and have right to live peacefully. इस बारे में कुछ दिया नहीं है, so answer would be B. They are old और उन्हें peacefully रहना चाहिए, ऐसा कुछ mention नहीं है. Coming to question number 17. Now 17 is talking about any invasion of private property whose howsoever minor is a trespass unless it is expressly authorized by law.
सीधी सीधी बात करेंगे भाई, प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेरेंस करोगे तो वो ट्रेसपास है। पुलिस पर्सनल में एंटर और सर्च प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली ऑन द एक्सप्रेस ऑथराइजेशन फ्रॉम द जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल ऑफिसर के ऑथराइजेशन के बाद ही आप किसी के घर में सर्च कर सकते हो या एंटर कर सकते हो। या यहां पर मिस्टर ए अ वोकल क्रिटिक, ठीक है, ऑफ सर्टेन पॉलिसीज ऑफ क्वींस ऑफ एसगार्डिया was due to lead a protest against the prevailing government policy. Solely on the instruction of the Queen, police officers secretly entered A's residence to search through a computer and discovered her plant of protest. क्या यहाँ पे वो क्वीन के परमिशन से आ गया था? हाँ, but did he had a proper permission or authorization from judicial officer? No. And if he had no judicial officer का permission, will he be liable for trespass? Yes, he will be liable for trespass. So ये बोल रहा है मिस ए विल बी सक्सेसफुल सिंस क्वीन वाज प्लानिंग ऑन क्वेलिंग। क्वीन क्या कर रही थी उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो अनसक्सेसफुल की बात कर रहा है, ये भी अनसक्सेसफुल की बात कर रहा है। सो आंसर वुड बी सी। A will be successful since the entry of the police officer constitute an invasion of personal property without authorization from judicial officer. Question number 18. Now question number 18 is doctrine of privity कि भाई जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई तीसरा इनके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो कटिंग एवरीथिंग शॉर्ट, देयर इज अ वेरी इजी क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है P और Q के बीच में, और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है Q और R के बीच में। बट जब R Q के कही हुई बात को नहीं मानता है, जब Q ने बोला था कि अगर तुम 50 रुपए से कम में बेचोगे तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, जब R ऐसा नहीं करता है तो P R के ऊपर केस फाइल कर रहा है। क्या P के R के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नहीं। याद दिया है ना, P सीक्स टू क्लेम अगेंस्ट R। P Q के ऊपर कर सकता है, Q R के ऊपर कर सकता है, बट P R के ऊपर कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो P will not be successful then since there is no privity of contract between P and R. Not successful since R is free to sell the product. नहीं. Not successful since Q has not been made a party to the proceedings. P is not successful since there is no privity of contract between P and Q. Now the point is P and Q की बात हो ही नहीं रही है, P और R की बात हो रही है, क्योंकि केस फाइल कर रहे हैं P R के अगेंस्ट। तो आंसर वुड बी ए। आंसर वुड बी ऑप्शन ए। 19th इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हो। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल एज है, एज ऑफ मेजोरिटी, वो 18 प्लस होना चाहिए। Z sought to purchase a property belonging to K. K को कोई प्रॉपर्टी बिलोंग करती है जो Z ने सोचा वो खरीद लेते हैं। 2 days before he completed 18 years of age. 2 दिन पहले जब वो 18 साल का नहीं हुआ है। K really liked Z's offer and 6 months later they entered into a contract. 18वें बर्थडे के 2 दिन पहले बात चली, बट कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद हुआ। और जब 6 महीने बाद हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो 18 प्लस हो चुका है? हाँ। और अगर वो 18 प्लस है तो क्या वो कॉम्पिटेंट था? Yes, he was competent. So option would be B. K is competent to contract because he entered into a contract after completing the age of 18 years. Next, acceptance ऐसा कुछ होना चाहिए जो properly communicated हो। Mere intention to accept without communication does not lead to a contract. Now this is a very simple and very classic question जो तुमने in general contracts पढ़ते हो हमेशा देखा होगा कि भाई J और T के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बट हुआ क्या कि जब T ने J को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। यहाँ दिया है T called J twice but J did not pick up her phone. उसने अपना फोन नहीं उठाया। अब जब ये J रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तो T ने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। किसको बेच दी? यहाँ पे सम अदर बायर। जब J को पता चला कि प्रॉपर्टी बिक गई है, वो कह रही कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे J के साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था। So options पे आओ। J will be unsuccessful because even though the contract was binding, T found a buyer who offered a higher price. ये तो सक्सेसफुल बोल रहा है, ये भी सक्सेसफुल बोल रहा है। D says J will be unsuccessful since T's acceptance has not been communicated to constitute a binding contract. Yes, कि भाई जब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो जाए और वो कम्युनिकेशन ऐसा ना हो कि जो एक दूसरे के नॉलेज में आए, तब तक क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर बाइंडिंग किस बात की, फिर ब्रीच किस बात का?
तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21. In relation to the law of contracts, any instance where both parties to an agreement are under the mistake about the matter of fact essential to the agreement, the contract is void. Mistake of fact होगा तो आपका जो contract होगा वो कैसा हो जाएगा? Void. Now, L agrees to sell M a consignment of food. और ये जब consignment आ रहा था, the ship carrying grains met with an accident and all the goods were lost. जब वो ship आ रहा था तो वो कहीं खो गया, सब गुम गया, सब चीजें खराब हो गई. L's agent informed L about this on the day of the accident. The agreement is the agreement void because mistake as a matter of fact. क्या ये agreement void है because there is a mistake of fact? The point is no. Mistake of fact तब होता है जब आपको confusion हो, आपको किसी तरीके के information में confusion हो, कोई uncertainty हो. यहाँ पे तो सबको पता है कि भाई वो lost हो चुके हैं कुछ. तो क्या यहाँ कोई uncertainty है क्या? नहीं. So answer would be no. अच्छा, एक और नो है विच इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है. डिसऑनेस्ट इंटेंशन फैमिली लॉ में काम आता है. सो आंसर वुड बी, सॉरी, क्रिमिनल लॉ में काम आता है. सो आंसर वुड बी सी. हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन देखते हैं ना, थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, कल्पिबल होमिसाइड में. सो दैट इज समथिंग जो क्रिमिनल लॉ में यूज होता है. ओके. Now, both parties to the contract are discharged from their respective outstanding obligations in situation where supervening event significantly changes the nature of contractual right and the obligation from what the parties could have reasonably contemplated from the time of executing the contract. कि भाई कभी कुछ ऐसा इवेंट हो जाए या ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए जहां पे चीजों को ऑल्टर करना पड़े, तो फिर और जो तुमने पहले इनिशियली सोचा नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज. ओके. The supervening event must not be a result of default on either of the party. दोनों में से कोई एक गड़बड़ कर रहा है और फिर तुम कह रहे हो कि ये तो वो ऐसा इवेंट हो गया है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाना चाहिए. क्या ऐसा मानेंगे क्या? नहीं. सो कोई विक्टोरिया नाम की सिटी है विच इज हाईली सस्पेक्टेबल टू पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. एस नाम का कोई इंसान सप्लायर है, ठीक है, और एच नाम का कोई वहां पे रेस्टोरेंट है. Where S would supply certain raw products to H at predetermined price. Their agreement also provided that in case of interruption of operations of H on account of epidemic, pandemic, or any other health crisis, the contract will be suspended until the crisis is declared to be over by the government and thereafter pending contractual obligations shall resume. वो पहले से ही मेंशन कर चुके हैं कि कभी कभी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ होगी और एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, तो उस टाइम के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा, बट बाद में फ्यूचर में वो उसी तरह से जैसे पहले था वैसे कंटिन्यू होगा. ठीक है. 3 months were left on the contract when there was a highly contagious virus in the city, ठीक है, which caused restaurant owners to suspend the operation. Once the outbreak was declared to be over 6 months later, H refused to purchase raw material from S, arguing that the contract is discharged. पहले ही बोल दिया गया था कि भाई अगर कभी ऐसी सिचुएशन रही जहां पे सब कुछ बंद करना पड़ा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करेंगे. ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अब रहा ही नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हट चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है. क्या ये जो बोल रहा है वो गलत है? हाँ. एक सेकेंड. So H is discharged from the obligation. No, H is not discharged from the obligation क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड था. बट जैसे ही 6 महीने हो चुके, पैंडेमिक को खत्म हुए और सब चीजें नॉर्मल हो गई है, क्या चीजें वापस आ चुकी है? क्या कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही आगे बढ़ेगा? हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज. तो नॉट डिस्चार्ज वाले ऑप्शंस देखते हैं. Not discharged from his obligation because the contract contained a provision dealing with outbreaks. Further, the parties could have reasonably contemplated the occurrence of an outbreak. ठीक है, ये तो उन्हें मेंशन किया था. Because the contract had ended by the time virus was declared to be over. ये तो कुछ काम का नहीं दिख रहा है. So answer would be B. Question number 23. When a defendant brings onto their land anything that is likely to do a mischief, सीधी सीधी बात कर रहा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की. एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, बट ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफेंस दिया हुआ है.
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो वो लाइबिलिटी होती है जहां पे डिफेंस नहीं होते। तो अगर ये डिफेंस मेंशन कर रहा है, मतलब क्या ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहा है? हाँ। The defendant can avoid liability if they can show that the situation has caused damage was a result of an unforeseeable act of the stranger which could not be controlled by the defendant. तो वो अगर दिखा दे कि भाई मैंने गड़बड़ नहीं की थी, सामने वाले की गड़बड़ थी, तो फिर वो इंसान अपनी लाइबिलिटी को फोरफिट कर सकता है। नाउ एम ने अपने घर में कुछ टाइगर आइगर लाके रख लिया है। ऑफ कोर्स टाइगर लाके रख रहा है तो क्या वो डेंजरस चीज के अंदर आ जाएगा? हाँ, वो डेफिनेटली डेंजरस चीज के अंदर आ जाएगा। बट हुआ ये कि पड़ोसी ने आके केज खोल दिया, ठीक है? यहाँ पे जेलस ऑफ एम्स पेट, एम्स नेबर एस, एस नाम का इनका पड़ोसी है जिसने आके वो टाइगर का केज खोल दिया, टाइगर बाहर भाग गया और पेडेस्ट्रियंस को उसने इंजर कर दिया। द पेडेस्ट्रियन विश टू सू एम फॉर डैमेजेस। क्या यहाँ पर एम किसी तरीके का डिफेंस ले सकता है? डेफिनेटली यहाँ पे एम डिफेंस ले सकता है। सो ए बोल रहा है द पेडेस्ट्रियन विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इट इज इलीगल टू कीप टाइगर एज अ पेट। नो, pedestrian claim can claim damages or can claim against M because he brought a dangerous thing onto the land amounts to non-natural use and it escaped. But the point is कि वो escape उसके कारण थोड़ी ना हुआ है, तो ये तो हमने हटा दिया, हमें डिफेंस भी दिया है यहाँ पे। M can escape liability because the escape was caused by an unforeseeable act by a stranger which could not have been controlled by M. क्या यही सही है? Yes. Agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. ठीक है? Now this is also one question which I have discussed lot many times using the example of furry, a car, furry, a cat as well, and a lot of you would remember as well. So एक ईला नाम की कोई पर्सन है जिसने बाइक खरीदी की बात चल रही है। अब बाइक की दो प्राइसेस कोट है, 31,000 भी और 30,000 भी। जब 31 और 30 में अनसर्टेनिटी है कि भाई 31 कंसिडर करना है कि 30 करना है, और अगर अनसर्टेनिटी है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? यस, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। तो ये बोल रहा है कि ये तो वैलिड अग्रीमेंट है? नहीं, द अग्रीमेंट इज वॉइड एज अनसर्टेनिटी देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस आर फाइनली अग्रीड। यस। क्या ये वॉइडेबल है? नहीं। वैलिड है? नहीं। सो आंसर वुड बी बी। एंड आई थिंक सेकेंड लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन, दो तीन ही लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन और है, बट या सरप्राइजिंगली देयर वर मोर लीगल रीजनिंग क्वेश्चन एज कम्पेयर टू लीगल नॉलेज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई किया जहां पे उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि इनिशियली शी इज गोइंग टू पे 31,000, बट अगर माइलेज एक्सीड करता है 60 किलोमीटर पर लीटर तो वो एडिशनली 3,000 रुपए और देगी। तो 31 पहले देना है, फिर कुछ महीनों तक वेट करना है और उसके बाद फिर तीन और देना है। मतलब क्या सब सर्टेन है? क्या सब कुछ नॉर्मल है? क्या सब कुछ फिक्स्ड है? हाँ। और अगर सब कुछ सही है तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? यस। तो ये तो इनवैलिड बोल रहा है, ये भी इनवैलिड बोल रहा है। B says there is a valid agreement as the price of motorbike is capable of being made certain. There is a valid agreement as Ela has already paid 31,000. क्या पे किया है क्या नहीं किया है वो काम का नहीं है, but something that can be made certain ये काम का है। So answer would be B and not C. Damages consequent to the breach of contract seek to compensate the innocent party for the loss suffered by it, so the innocent party is put in the same situation with respect to damages so far as the money can do it if the contract had been performed. जब डैमेज होगा तभी बात आएगी, नहीं तो डैमेज, नहीं तो किसी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस निकालने की बात नहीं आएगी। पहले कुछ मॉनेटरी लॉस होना चाहिए तभी आप सामने वाले से कॉम्पनसेट करवा सकते हो। अब 30 kg स्ट्रॉबेरी वो देता था बी को, जानते हुए कि बी का एक ऐसा बिजनेस है जहां पे वो यूनिवर्सिटी में कुछ जूस वूस पार्लर चलाता है। अब इसने कुछ सब स्टैंडर्ड स्ट्रॉबेरी बेची, बट वी ने उन सारी स्ट्रॉबेरी को भी यूज कर डाला क्योंकि जूस में कुछ खासा समझ आता नहीं है। और उसके जो कस्टमर्स थे, ठीक है, नन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ बी वर एबल टू मेक आउट द डिफरेंस और कंप्लेन अबाउट द जूस एज अ मैटर ऑफ इशू। तो उनको ये दिक्कत भी नहीं लगी, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये सब स्टैंडर्ड या बेकार क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज है। अब भी अगर यहाँ पे डैमेज रिकवर करना चाहे ए से तो क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है तुम डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते। सो ए इज लाइबल टू कॉम्पनसेट? नो। फिर सारे बोल रहे कि ए इज नॉट लाइबल, ठीक है।
is not liable to compensate B since B suffers no monetary loss. Okay. A is not liable to compensate B because the contract did not prevent A from supplying substandard. ये किसी काम का नहीं है. A is not liable to compensate B since none of the customers have proceeded. Customers थोड़ी ना proceed करेंगे. So answer would be B. Now, the questions which majorly you would have expected कि भाई करंट लीगल नॉलेज के होंगे बट वो एक्चुअल करंट लीगल नॉलेज के नहीं थे. ठीक है. कुछ ऐसे थे जो थोड़े से पुराने थे, कुछ ऐसे थे जो स्टैटिक का पार्ट ज्यादा थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वाज, नेम द ओनली erstwhile princely state in India that followed allowed to have its own separate constitution on the session to India. Now 370 को टाइम हो चुका है. ठीक है. ये आर्टिकल 370 वाली पूरी चीज को टाइम हो चुका है. ये पिछले एक साल का करंट लीगल का पार्ट नहीं था. बट डज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग टू दैट एरा? यस. सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था. हमने 370 को अबॉलिश कर दिया आर्टिकल को, एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री. जो सारे लॉज इंडियन टेरिटरी में लगते हैं, क्या वो सारे जम्मू कश्मीर में भी अब एप्लीकेबल है? हाँ. Which of the following statement accurately captures India's position on torture? Now, this would have been a little bit confusing because जब किसी ने डी ऑप्शन देखा होगा तो उनको लगेगा कि यार डी तो सबसे सही आंसर लग रहा है, बट द आंसर इज ऑप्शन बी. क्योंकि वो इंडिया की पोजीशन पूछ रहा है. ये तो इंडिया का इंटरनल लॉ है. ठीक है. तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी. नो, इंडिया इज अ सिग्नेटरी बट रेक्टिफाई नहीं किया है. तो इंडिया सिग्नेटरी तो है बट रेक्टिफाई नहीं किया है. और इंडिया की पोजीशन तो हम ऑब्वियसली बात है ना, किसी यूएन के कन्वेंशन के थ्रू या कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट है या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन है, क्या उसके थ्रू ही बता पाएंगे इंडिया की पोजीशन? हाँ. सो आंसर इज ऑप्शन बी. Basmati rice is an example of, it's an example of geographical indication. Copyright तो उन चीजों के लिए होता है जो आपका आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क हो. डोमेन नेम वेबसाइट्स के साथ जाता है. ट्रेड सीक्रेट तो सीक्रेट ही है भाई, जिस पे आपका पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है. जोग्राफिकल इंडिकेशन जो जिस एरिया में पैदा होता है, जिस एरिया में जिसकी पैदावार है, जहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे बनाया जाता है, क्या वो ज्योग्राफी से ही निकल के आता है? हाँ. तो बासमती राइस, a particular type of grain, a particular type of rice grown in a particular area, so it's a geographical indication. In part, yeah. Part 8 of the Constitution of India, the Parliament is empowered to create local legislature and council of ministers for certain union territories. Name the union territory or territories in India that have legislative assembly and council of ministers. कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं? तो दिल्ली हैज इट्स ओन असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी, दैट इज पुडुचेरी. सो आंसर वुड बी सी. Who is the only judge of Supreme Court has also served as Vice President of India? That is Justice Muhammad Hidayatullah. So HNLU, the college in Raipur, is also named on his name only. So Justice Hidayatullah के नाम पर ही वो कॉलेज का नाम रखा गया है, HNLU. Who replaced Justice Ruth Bader on the Supreme Court of United States? So she is one of the longest serving judges, and she has been she passed away in September 2020. The person who actually succeeded her was Amy Coney Barrett. Which of the following position is not provided for the Constitution of India? Again, a proper static का क्वेश्चन. अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दिया हुआ है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी दिया है, सॉलिसिटर जनरल नहीं दिया है. सो द आंसर इज बी. कुलभूषण जाधव का जो केस था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, दिस वाज आल्सो द लास्ट केस अभी तक जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइल किया है. एंड दिस इज अ केस जो पिछले 3-4 सालों से डिस्कस होता आ रहा है, बट लास्ट ईयर ऐसा कुछ बहुत बड़ा इस केस में डिस्कस नहीं हुआ था. Still, we could find a particular question related to this.
सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो 15-1 मेजोरिटी फाउंड पाकिस्तान टू बी इन वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? दैट वाज कंसुलर एक्सेस। तो जो वियना कन्वेंशन में कॉन्सुलर एक्सेस दिया है कि अगर कोई एक पर्सन, एक एक कंट्री का सिटीजन जब दूसरी कंट्री में पकड़ा जाता है, तो उस सिटीजन की राइट बनती है कि वो अपनी पेरेंट कंपनी या जहां का वो सिटीजन है, वहां से किसी भी तरीके का लीगल एड मांग सकता है। तो ये लीगल एड उसको प्रोवाइड नहीं किया था, तो आइडियली कुलभूषण जाधव शुड हैव बीन प्रोवाइडेड लीगल एड, और इंडिया की जिम्मेदारी बनती थी कि इंडिया आता और अपने सिटीजन को वहां पे रिप्रेजेंट करता। बट इनिशियली ये नहीं किया गया था, उसको डायरेक्टली पनिश कर दिया गया था। So this was one thing that was violated. Now this is something which was very well discussed in 2018 and 19, but they have given this particular question in 2021. So for the next year, A-Lit takers, they will have to be very careful about all the current legal knowledge जो शायद पिछले 1-2 साल में आए हैं, not just last 10-11 months. The last question: who among the following is not a judge of Supreme Court? So R. Bhanumati is a judge. Gyansudha Mishra, Ranjana Prakash. Manjula Taylor is not. She was a Chief Justice of a High Court, so she is not a judge of Supreme Court. She has not been elevated to the judge of Supreme Court. वो अभी कोई appellate board है जिसकी chairman है. So the answer is option C. So with this, I end the analysis here. The paper was pretty easy, but a key learnings. One, that does not mean that the next year also the paper would be the same level of easy. And secondly, the current legal knowledge, it should be dealt in a much broader manner as compared to the just last 10-11 months. So with this, I end the session. Thank you.